السلام على الحسين العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر. ایک صلوات پڑھ دیں آپ تمام حضرات مل کر. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام حضرت شہزادی سکینہ بنت الحسین کی شہادت کے ایام ہیں. ہمارے یہاں 10 تاریخ صفر کی بی بی کا شہادت کا دن ہے. بہرحال بعض روایتوں میں 17 صفر بھی ہے. یہ پورا ہفتہ ہی بی بی کے نام ہے. عزیزو، انتظامیہ نے، منتظمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس مختصر سی تقریر میں بڑے کم وقت میں چھوٹی شہزادی کے مصائب پڑھنا ہے. فضائل کچھ بھی نہیں، صرف مصائب ہی پڑھنا ہے. عزیزان گرامی، حضرت شہزادی سکینہ بنت الحسین کی پوری 4 برس کی زندگی پر اگر ہم نظر کریں تو بی بی کی پوری زندگی مکمل ایک مصائب ہے. سکینہ فضیلتوں کا نام اپنی جگہ پر ہے، لیکن سکینہ بی بی وہ ہے کہ جو خود ایک مرثیہ بن کے رہ گئی. عزیزان گرامی، پوری تاریخ ہے. یہ لفظ بھی بڑا معتبر لفظ ہے. یہ لفظ بھی قرآن مجید کے دامن میں آیا ہوا ہے. میں بالکل وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے ملکی مایہ ناز انجمن ہے امامیہ، یہ املوں کی ہے. عزیزان گرامی، نوجوان وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں 2-4 فقرے عرض کروں. بی بی شہزادی سکینہ آقا حسین کی وہ چھوٹی بیٹی تھی کہ جس کے لیے حسین باقاعدہ کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس میں سکینہ نہ ہو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ حسین کو اپنی 4 برس کی بچی سے کتنا لگاؤ تھا. میں نے اس تقریر کی ابتدا کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے رکھا ہے، صرف اگر عالم اسلام اس آیت پر غور کر لے تو خدا کی قسم حسین کی سکینہ کا غم منانے کے لیے اور مصائب پڑھنے کے لیے یہی آیت کافی ہو جاتی ہے. قرآن کے دامن میں آیت آئی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یاد رکھو، یتیموں پہ کبھی قہر نہ ڈھانا، یتیموں پر کبھی ظلم نہ کرنا، یتیموں کو کبھی پریشان نہ کرنا. یہ قرآن کی آیت ہے اور وہاں آیت آئی ہے. انہوں نے آیت سنائی ہے، انہوں نے دنیا کو یہ پیغام سنایا ہے کہ جن کے گھر میں یہ آیت آئی ہے انہوں نے بتایا دنیا کو دیکھو یتیموں کو ستایا نہیں جاتا، یتیموں پہ قہر ڈھایا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا یتیموں کو نہ ستاؤ، یتیموں پہ قہر نہ ڈھاؤ. مگر اے عزاداروں، میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، قرآن کربلا
में दोनों तरफ था, इधर भी कुरान था, उधर भी कुरान था, इधर भी तिलावतें थी, उधर भी तिलावतें थी, इधर भी नमाजें थी, उधर भी नमाजें थी। मगर अजीज़ान गिरामी, एक तरफ सिर्फ खाली क़िरात थी और एक तरफ तफ़हीम कुरान था। जहाँ तफ़हीम कुरान था वहाँ मजलूमियत थी, वहाँ बेकसी थी, वहाँ बेचारगी थी। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ढिढोरा इस्लाम का पिट रहा था वहाँ जुल्म बर्बरियत थी। अजीज़ान गिरामी, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, कुरान कहता यतीमों पर कहर न ढाओ। सोचो कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने 4 बरस की यतीमा का ख्याल न किया। रवायतें कहती हैं इधर बाबा मारा गया, उधर सकीना के रुखसारों पर तमाचा लगाया गया। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हमारे यहाँ कोई यतीम हो जाए, बिलखुसूस कोई बच्ची यतीम हो, तो महल्ले की मस्तूरात कलेजे से लगा लेती है। महल्ले के लोग आ जाते हैं, समझाते बेटा गम न करना, तेरे बाप का साया सर से उड़ गया तो क्या हुआ, तेरे बाप की जगह हम हैं, गम न करना। मगर हाय गरीबी करबला, जहाँ 4 बरस की बच्ची को कोई समझाने नहीं आया, कोई दिलासा देने नहीं आया। हाँ, अगर कोई आया तो रुखसार पर तमाचे लगाए हैं, अगर कोई आया तो कानों से बुंदे छीने हैं। ए अज़ादारों, में आपके खिदमत में अर्ज करूं, अरे बादे कत्ले शाह आदा का बढ़ा वो हौसला, घर जला कर राख कर डाला रसूल अल्लाह का। शामियां पसंद बाजू ज़ैनबो कुलसूम रा, तोक़े अंदर गुलूए सैयदे सज्जाद रा। अरे इधर हुसैन मारे गए, उधर खेमों में आग लगाई गई, सैतानियों के सरों से चादर छीनी गई, बीबी सकीना का गोशवारा छीना गया, रुखसारों पर तमाचा लगाया गया। अरे जुमला सुनो, जुमला, तुम्हारे घर में कोई बीमार हो तो बड़े एहतमाम से उसका बदला बदलते हो, मगर आए गरीबी सज्जाद, जलता हुआ खेमा, बिस्तरे सज्जाद में आग लगाई और बिस्तर से तुम्हारे इमाम को इस अंदाज से पलटा गया कि सज्जाद मुंह के बल जमीन पे गिर गए। जज़ाकल्लाह। नाना बुलंद है आपकी आवाज़ें गिरिया, दुआएं कर लिएगा शहजादी, आपके आंसुओं को अपने रुमाल में दे जगा दे, हुसैन की माँ आपकी दुआएं पूरी करे। अभी मैंने कोई रिवायत नहीं पढ़ी है, अभी मैंने कोई मसाइब का फिक्रा नहीं पढ़ा, मगर आप रोने के लिए आमादा हो गए। आओ मैं तुम्हें यहीं से हुसैन की 4 बरस की सकीना दिखाऊं। देखो कितने नाजों से पली है। तारीख कहती वो सकीना जो मदीने की सरजमीन पे पैदा हुई तो कभी उसे लोरिया ज़ैनब सुनाती, कभी कहानियां सज्जाद सुनाते, कभी आगोश में अब्बास भरे रहते। रिवायतों का फिक्रा है कि अभी ये शाह की सकीना 1 बरस की भी न पहुंची थी कि पहली मर्तबा जमीने मदीना पर हुसैन की छोटी सी बच्ची ने अपना पहला कदम रख के चलना चाहा, पहला कदम रख के चलना चाहा। जुमला सुनना, रिवायत का फिक्रा है अभी हुसकीना 1 साल की ना हुई, पहली दफा मदीने की सरजमीन पर हुसैन की बच्ची ने पहली दफा चलना चाहा। जैसे अपना नर्मोदाजु कदम रखा, चंद कदम लड़खड़ाते हुए पड़ी थी कि एक मर्तबा घुंघरेले बालों वाला शेर सा चचा दौड़ के आया, सकीना को आगोश में भर लिया का खबरदार, जब तक गुलाम जिंदा है मेरी भतीजी पैदल न चलेगी। देखा ना आपने कैसे पली थी, महसूस किया ना आपने, नाजों से पली थी। अब्बास की आवाज आई, जब तक गुलाम जिंदा है मेरी सकीना पैदल न चलेगी, मैं जिंदगी भर पलके बिछाऊंगा, मैं आगोश में लिए रहूंगा, मेरी सकीना पैदल न चलेगी। ए आजादारों, सुन सकोगे मसाइब, जो सकीना इतने नाजों से पली थी। रिवायत का फिक्रा है कि 10 मुहर्रम को बाबा मारा गया, 11 मुहर्रम आई तो काफिला करबला से चला, 13 मुहर्रम आई तो काफिला कूफा पहुंचा, 29 मुहर्रम आई तो काफिला शाम पहुंचा। ए आजादारों, जो नाजों से पली थी ना, उसी सकीना के गले में शाम
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। खुदा से दुआ करना खुदा किसी बेटी को इतनी गरीब न करे जैसे हुसैन की सकीना हो गई, रो के कहती भैया सज्जाद मुझसे चला नहीं जाता, ए भैया मेरे पाँव में आबले हैं, भैया आबले फूट चुके हैं, ए भैया सकीना से चला नहीं जाता। अज़ादारों जो नाजों से पली थी वो चलते चलते राह शाम में बैठ गई, अभी बैठी थी कि शिमर ने ताजियाना उठाया, ताजियाना लेके उस गरीब तक आया और आन के ताजियाना लगा के झिझक के कहता है, झिझक के कहता उठो चलो, उठो चलो। जब सकीना का दिल फट गया ना तो बीबी ने कुछ न कहा, वो उस रहवार का रुख किया जिस पर गाजी का सर था और रो के कहा मेरे शेर से चचा मैं कहती थी मुझे पैदल चलने दो, ए चचा तुमने चलने न दिया, आज शेर जबरदस्ती चला रहा है। जज़ाक अल्लाह। हो गई मजलिस, दे चुके आप पुरसा, रो लिए अज़ादारों, इसलिए कि किसी की जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, नहीं पता आइंदा बरस हमें ये गम मिले न मिले, नहीं पता हम जिंदा रहे न रहे। लेकिन एक फिक्रा पड़ रहा हो, अगर आंसू आंखों में ना आए तो गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। छठे इमाम फरमाते हैं बड़ी कदर व कीमत है इस अश्क अज़ा की। सुनोगे रावी कहता है कि मैंने छठे इमाम को आलम सजदा में देखा, का मौला किस हाल में देखा, का सजदे में देखा, देखा सजदे में है मगर इमाम रो रहे हैं, छठे इमाम गिरिया कर रहे हैं। रावी कहता मैंने सोचा कि आखिर मैं सुनूं तो मौला के लब हिल रहे हैं, आका कह क्या रहे हैं। रावी कहता मैंने अपनी समाते इमाम के लबों के करीब कर दी, अब जो मैंने सुना तो सजदे में छठे इमाम रोते जाते थे, कहते जाते थे परवरदिगार मेरे छत पे रोने वालों के गुनाह बख्श दे। अल्लाह अल्लाह अकबर। दो फिक्रे बीबी की शहादत का पढ़ दूं, मजलिस तमाम है, मैं बिल्कुल वक्त न लेता, लेकिन एहतमाम फर्श है ना, आप सुकून से बैठे हैं। अजीज़ान गिरामी मैं आपको खुशा नसीब कहता हूँ कि आप खुश नसीब है, हुसैन का गम मनाने सकीना की शहादत सुनने के लिए बैठे हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे खाक नहीं है, फर्श का एहतमाम है। आए गरीबी है सकीना, अरे 4 बरस की बच्ची 1 साल तक करबला से शाम, ए आज़ादारों नहीं ना ये गफले वालों को पूरे साल न बिस्तर नसीब हुआ, सुनेंगे जुमला, न तकिया नसीब हुआ। सुने खुद मेरा मजलूम इमाम फरमाता है कैद खाना ऐसा था जहाँ रात को शिद्दत की ओस, दिन को शिद्दत की धूप। अजीज़ान गिरामी नहीं पढ़ता मैं तफसीर, बहुत तकरीरें हैं आपकी खिदमत में, फिर सुन लिएगा मसाइल, तो 2 फिक्रा बीबी की शहादत का सुन लो, इसी पे मजलिस तमाम। रिवायत कहती है अहले हरम को शाम के कैद खाने में असीर किया गया। जब असीर हो गए अहले हरम तो अज़ादारों लुटी हुई बीवियां हैं, उजड़ी हुई माएँ हैं, बेवाओं का हुजूम है, ऐसे में 4 बरस की यतीमा है और एक गोशे में बीमार भाई है जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कमर में लंगर है, गले में तोख है। ये मेरा जुमला नहीं है, रिवायतें हैं। खुदा की कसम सैयद सज्जाद को अगर शाम में सबसे ज्यादा किसी चीज ने रुलाया है तो वो छोटी बहन के सवालों ने, ए भैया हम वतन कब जाएंगे, ए भैया हमें रिहाई कब होगी। जज़ाकल्लाह। सबसे ज्यादा अगर गरीब को रुलाया है तो सकीना के सवालों ने। पता है मैं एक सवाल पढ़ूं, अंदाजा लगाइएगा, इतनी देर से आप बैठे हैं, ये नौजवान मुझे बताए अमिलो वालों एक दवा पढ़ते हो प्यास का एहसास होता है कि नहीं होता? आओ मैं तुम्हें उस भाई बहन का मुकालमा दिखाऊं जो शाम के अंधेरों में है, बहन भाई से बातें करती, भैया हम रिहा कब होंगे, भैया हम आजाद कब होंगे। सज्जाद रो रो के कहते हैं सकीना अब ये जिंदान तुम्हारा मुकद्दर है, ए सकीना अल्लाह जाने रिहाई कब लिखी है। मगर आजादारों सुनो, बोलते बोलते एक मरतबा सकीना की आवाज चुप हो गई, खामोश हो गई। सज्जाद समझ गए शायद सकीना सो गई, मगर थोड़ी देर बाद बहन फिर बोली, भैया आप इमाम हो ना? हाँ मेरी बहन। साहिब एजाज हो ना? हाँ बहन। भैया एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे?
आप बहन पूछो क्या सवाल है? रो के सकीना कहती भैया सिर्फ इतना बता दो कि मनाजिले आतश क्या होते हैं। ए भैया प्यास के दर्जात क्या होते हैं? ए भैया प्यास की कैफियतें क्या होती है? सज्जाद कहते सकीना जब कोई बहुत प्यासा होता है ना तो उसका गला खुश्क हो जाता है, जुबान में कांटे पड़ जाते हैं। रो के कहती भैया अगर कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो, सज्जाद ने फिर रो के कहा फिर उसके बदन का पानी खुश्क हो जाता है। रो के कहती भैया अगर कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो, सज्जाद ने कहा फिर खून सूख जाता है। कहा अगर कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो, सज्जाद ने तड़प के कहा फिर आंखों के नीचे अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। सकीना कलेजे पे हाथ मार के कहती भैया अगर कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो, सज्जाद रो के कहते हैं फिर वो बचता नहीं है, उसकी हड्डियां झटकने लगती है, जोड़ खुलने लगता है। सकीना ने कहा भैया ये देखो हड्डियां झटक रही है, जोड़ खुल रहा है। सकीना का खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह भैया, सकीना का खुदा हाफिज़। अज़ादारों गरीब ने अपनी बहन को दिलासा दिया, मगर रिवायत का फिक्रा है बाबा की याद में खोई रहती हुई सकीना एक मरतबा बाबा काबा करते रोने लगी, रोते रोते सो गई। अहले हरम समझ गए बीबी सोई है, लेकिन जब सकीना सोई थी ना ख्वाब में गरीब को देखा। क्या देखा? बाबा आए हैं, आके सकीना को प्यार कर रहे हैं। बीबी ख्वाब में कहती बाबा मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? ए बाबा तुम्हें नहीं खबर कि तुम बिन मैं जी नहीं सकती? ए बाबा तेरे बिना सकीना मर जाएगी। बाबा मैं तेरी अपनी सकीना हूँ। ए बाबा मुझे छोड़ के कहाँ गए थे? हुसैन ने कलेजे से लगा लिया का सकीना इतने दिन गुजर गए तू सो न सकी, आजा मेरी बेटी मेरे कलेजे पे सो जा। हुसैन ने अपनी सकीना को लिटाया, सकीना आलम ख्वाब में गोया है कि बाबा तुम तो चले गए, मगर वहाँ पुपियों की रजा छीनी गई। ए बाबा घर जलाया गया, ए बाबा भैया का बिस्तर जला, ए बाबा मुझे तमाचा लगा, ए बाबा जो गोशवारा तुमने मुझे पहनाया था ना, बाबा शिवर ने मेरे गोशवारे छीन लिए। अल्लाह अकबर। बीबी फरियाद गुना थी कि इतने में गरीब ने आलम ख्वाब में रोते रोते का सकीना अब तेरे दुख के दिन खत्म हो गए, तेरी मुसीबतें तमाम हो गई। बीबी बहुत सब्र किया। बीबी आओ चलो तुम्हारा बाबा तुम्हें लेने आया है। अज़ादारों ये फिक्रा सुनो, अब महसूस करो। कहती आ मेरी बेटी आ तेरा बाबा तुझे लेने आया। ख्वाब में सकीना ने बाबा के साथ जैसे ही जाने का कस्द किया, आँख खुल गई। क्या देखा? अंधेरा बंद, वही जिंदान, वही कैद खाना, वही गरीबी। रोके का पुपी अम्मा भी यही मेरा बाबा था, मुझे लेने आया था, कह रहा था सकीना तुम्हारे खुद तुम्हारी जिंदगी तमाम हो गई। ए सकीना मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अहले हरम समझ गए बला का गिरिया हुआ। अभी अंधेरे बन में बच्ची बाबा बाबा कर रही थी, उधर यजीद की आंख खुली। का क्या है? का बच्ची ने ख्वाब देखा है, बाबा को देखा है। कभी बाबा का सर भिजवा दो। अज़ादारों इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ। जिस बच्ची ने अभी अपने बाबा को सलामत देखा हो, उसी रोती हुई बच्ची के बाद जब एक मरतबा तश लाया गया, बीबी ने तश से रुमाल हटाया। क्या देखा? बाबा का सर। अरे मुंह पे मुंह रख दिए बाबा। ए बाबा अभी तो तुम सलामत थे, ये किसने सरे बुरीदा किया? ए बाबा किसने आपसे हमें जुदा कर दिया? ए अजीजों मुंह पे मुंह रख दिया, खूब गिरिया हुआ। चुप हो गई सकीना। अहले हरम समझ गए सो गई है। किसी ने कहा ना उठाओ नहीं, सोने दो, सो जाने दो। बीबियां इस मसले को समझ सकती है ना। कोई बच्चा बहुत रोता है, खामोश हो जाए तो कहती ना ना उठाओ नहीं, सो जाने दो, सो जाने दो, कुछ इफाका हुआ है, सो जाने दो। सज्जाद ने कहा कब तक मुंह पे मुंह रख के सोगी सकीना? आओ मैं तुम्हें लिटाऊं। गरीब झुका, बाजू पे हाथ रखा, रोके का पुपी अम्मा मेरी बहन मर गई। ए आजादारों कयामत हो गई। लो शाम के जिंदान में 4 बरस की सकीना दागे मुफारकत दे गई। अरे एहतमाम गुस्ल हुआ, गस्साला तोड़ के आई। कभी भी मैं गुस्ल नहीं दे सकती। ज़ैनब ने कहा क्यों
क्या वजह है, क्यों ना गुस्ल दोगी? कभी भी हम मुर्दे नहलाते हैं, हम बीमार नहीं नहला सकते। का ज़ैनब बीबी कहती क्या कमी क्या है, दिक्कत क्या है, बताओ तो सही। कभी भी हम मुर्दे नहलाते हैं मगर हम इस तरह की बीमार नहीं नहला सकते, इन्हें आप खुद गुस्ल दे। ज़ैनब तड़प गई, का हम खुद गुस्ल देंगे, लेकिन वजह तो बता। का सिर्फ आप इतना बताइए कि आपकी बच्ची को कितनी मोहलिक बीमारी थी। का क्या हो गया? कहा जब मैंने गुस्ल के लिए बीबी का पैराहन उठाना चाहा तो कुर्ते के साथ जिस्म की खार ज़ैनब तड़प गई। ए बीबी अब भी न समझी, जब से बाबा